Next, we are starting with problems in consignment. So next we have illustration number 5. So page number is our 6.61. So let us see what data is given to us in the question. So we are given that Shri Mehta of Mumbai consigns 1,000 kg of goods costing 1,000 each to Shri Sundaram of Chennai. So it is given that one is Mehta consigns. So how many goods? 1,000 kg to Sundaram of Chennai. So as its cost is given, costing rupees 1,000 each. Right? Cost is 1,000. And Shri Mehta pays the following expenses. So Mehta is a consignor in this case, expenses incurred. So number one is carriage. So carriage paid is 10,000. Then he has incurred freight. So that is 30,000. And then the loading charges. So this is 10,000. So this I am writing the data of a question. So Mehta is a consigner who has consigned 1,000 units of goods, cost is 1,000 each to Sundaram. Sundaram is a consignee, and these are the expenses which are incurred by Mehta, means a consigner. Then Shri Sundaram sells 700 cases. So Sundaram has sold 700 cases at the rate of rupees 1,400 each. So it means this one is our sale price and incurs following expenses. So Sundaram has also incurred some expenses. So what are those expenses? Clearing charges. So clearing charges are 8,500, and then warehousing and storage, or which is called warehouse expenses, 17,000. So clearing charges are direct expenses which are called non-recurring, and warehouse is recurring expenses. So packing and selling expenses 6,000. This is also recurring expense, and selling 6,000. So it is found that 50 cases have been lost in transit. So there is a loss in transit. So how much is the loss? That is 50 cases are lost in transit, and 100 cases are still in transit. और आपको ये भी दिया है 100 cases are still in transit. 100 cases in transit. तो मीन्स ट्रांजिट का मतलब होता है ये भी कंसाइनी को रिसीव नहीं हुए हैं. तो कंसाइनी ने कितनी कुछ रिसीव की? 1000 केसेज माइनस 50 माइनस 100, which means cases received by consignee. Exactly how much? 1000 minus 50 minus 100. तो 850 यूनिट्स उसको रिसीव हो रहे हैं. इसमें जो कंसाइनी के एक्सपेंसिव है 8500, 17,000, पैकिंग ये सभी हो रहे हैं 850 यूनिट्स के ऊपर. तो फर्दर गैर सेइंग दैट सिंगल इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10%, तो इसको कमीशन मिलेगी 10%. तो कमीशन इज 10% ऑन सेल. तो ड्रॉ अप द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सिंगरम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता. तो कंसाइनर की बुक्स में आपको बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट एंड जो कंसाइनी अकाउंट. तो उसके लिए सबसे पहले ये को आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक तो लॉस इन ट्रांजिट, उसकी वैल्यू निकालेंगे. देन यू राइट व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक. तो 850 यूनिट्स उसको मिले हैं और उसमें से सेल हो गए आपके 700. तो 150 यूनिट्स
आर इन स्टॉक। तो एक आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और जो गुड्स इन ट्रांजिट है, ये भी आपका एक तरीके से स्टॉक ही है। तो लेट्स सी वन बाय वन। तो फर्स्ट आई एम गोइंग, व्हाट इज नंबर वन, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस है जो आपका हो रहा है ट्रांजिट में, लॉस इन ट्रांजिट। सो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। तो 50 यूनिट्स आपके लॉस्ट हो गए हैं ट्रांजिट में, उसकी कॉस्ट है 1000 ईच। तो इट मीन्स दिस इज 50,000। फिर आपको ऐड करनी है, ट्रांजिट में लॉस है, सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसिव ऐड हो जाएंगे। तो दैट विल बी प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंसिव। तो अब देखिए कंसाइनर के एक्सपेंसिव हैं, कैरेज है, फ्रेट है, लोडिंग चार्जेज हैं, टोटल बन गए आपके 50,000। तो आपको लेने हैं प्रोपोर्शनेट। तो दिस इज हाउ मेनी केसेस 1000, उसमें से लॉस हो रहा है आपका 50। तो 50 इंटू दिस दैट इज 2500। तो ये आपकी लॉस की वैल्यू आ जाएगी 50 टू 500। फिर आपको कैलकुलेट करना है अब स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। So second we are calculating what is the value of closing stock। और क्लोजिंग स्टॉक इसमें दो तरह का है। नंबर वन को है आपका जो गुड्स आपके ट्रांजिट में है, गुड्स इन ट्रांजिट। तो इसमें तो सिर्फ आपकी कॉस्ट आएगी, वट इज कॉस्ट। तो 1000 रुपीज और 100 यूनिट्स हैं आपके ट्रांजिट में, तो रुपीज में चल रहा है अमाउंट 1 लाख रुपीज। और आएंगे इसमें कंसाइनर के एक्सपेंसिज, कंसाइनर एक्सपेंसिज तो वो है 50,000 के कंसाइनर एक्सपेंसिज। So that will be also 50,000 into 100 by 1000. So this will be about 5,000. 2000, this is 105,000। सेकंड है अब आपका जो रिमेनिंग स्टॉक रह गया है, स्टॉक इन गोडाउन। अब जो कंसाइनी के गोडाउन में है, तो इस स्टॉक में आपने कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसिव भी कंसीडर करने हैं। बट जो कॉस्ट, देखो आपने स्टॉक निकाला था अभी, 850 में से 700 सेल हो गए हैं, 150 यूनिट्स कॉस्ट है जो 150 यूनिट्स इंटू 1000 आपकी कॉस्ट प्राइस है 1,50,000 प्लस टू ऐड कंसाइनर एक्सपेंसिव। तो कंसाइनर के एक्सपेंसिव आपको ऐड करनी है। तो दिस वन इज 50,000 एंड लेबर इनकम ऑन 1000। So what will be for 150? 7,500। फिर आपको ऐड करने हैं कंसाइनिंग एक्सपेंसिव। कंसाइनिंग के लेंगे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसिव, डायरेक्ट एक्सपेंसिव है आपके 8,500। तो ये एक्सपेंसिव कंसाइनिंग ने इंकर किए हैं, कितने यूनिट्स उसको रिसीव हो रहे हैं वो हमने निकाले कि 850 यूनिट उसको मिले हैं। तो 850 के ऊपर और उसमें से आप कैलकुलेट कीजिए 150 के ऊपर, दिस इज 1500। दिस विल बी वैल्यू ऑफ स्टॉक 159,000। ये आपकी स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अब आप बना सकते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं उसकी बुक्स में। तो कंसाइनर की बुक्स बन रही हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 105। आपको मेंशन करना है बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता। So Mehta is consignor, so we are preparing consignment account।
तो सबसे पहले आएंगी जो गुड्स आपने भेजी है कंसाइनमेंट के ऊपर, जिसे जो टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट, तो 1000 यूनिट्स एट रुपीज 1000, तो अमाउंट इज 10 लाख रुपीज। फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, बैंक एक्सपेंसेस, तो जिस जो कंसाइनर एक्सपेंसेस हैं कैरेज फ्रेट लोडिंग को आप मेंशन कर सकते हैं वन बाय वन। तो टोटल बन रहे हैं 50,000। फिर कंसाइनिंग को डिलीवरी मिलती है। कंसाइनिंग एक्सपेंसेस हैं आपके क्लियरिंग एंड वेयर हाउसिंग पैकिंग टू कंसाइनिंग, कंसाइनिंग का नाम है सुंदरम। तो व्हाट आर एक्सपेंसेस तो आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियरिंग चार्जेज हैं 8500 प्लस 17,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस हैं आपके पैकिंग एंड सेलिंग 6000। So total 23 plus 8 31,500, यानी कि जो बाय एबनॉर्मल लॉस उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कीजिए। एबनॉर्मल लॉस बाद जो 50 यूनिट्स थे आपके, उसका देखिए आपने अमाउंट कैलकुलेट किया था 50,000 एंड जो एक्सपेंसिव थे आपके जैसे 25 52,500 वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस बाय कंसाइनिंग सुंदरम सेल्स। तो 700 यूनिट्स आपने सेल किए हैं 1400 के ऊपर, 700 इंटू 1400, तो 9,80,000। Then by closing stock, number one goods in transit और stock in transit, तो its value is 105। तो stock in transit 105,000। Then we have goods in hand at godown, उसकी वैल्यू है 159,000। बस अब आपने कमीशन पे करनी है कंसाइनी को। तो इट इज फाउंड दैट कमीशन इज 10%। तो उसमें जो मेन पॉइंट ये था कि जो गुड्स हैं दो तरह की हैं स्टॉक में, एक ट्रांजिट में है और एक हैंड में। तो उसमें हमने कंसाइनर के एक्सपेंसिव लिए हैं और जो कंसाइनर के नहीं लिए क्योंकि उसको रिसीव भी नहीं हुई है गुड्स। तो ये एक नया पॉइंट था इसमें। अब आते हैं टू कमीशन, तो टू कंसाइनिंग दिस इज योर कमीशन, दिस इज एट द रेट ऑफ 10% ऑन ग्रोस सेल्स है 980, so it will be 98,000। So balance will be our net profit. This is transfer to P&L. Profit on consignment. No other expense. So total 52,500 plus 9,80,000 plus 105 and 159. So this total is coming 1296 500. So minus 1050 and like 50,000 minus 31,500 minus 98,000. So 117,000. So this is our profit. Value 96,500. So next they are also asking to prepare consignee account. Consignee का नाम है Sungram account. Legacy Jackman Sungram account. तो
कंसाइनिंग अकाउंट में आता है जब गुड्स भेजते हैं उसकी कोई एंट्री नहीं है तो सबसे पहले कंसाइनी ने एक्सपेंसिव पे किए हैं RA, तो राइट उसकी हम एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, तो ये एंट्री आएंगी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। एक्सपेंसिव इनकर्ड बाय कंसाइनी, तो उसका टोटल था ये क्लियरिंग चार्जेस वेयर हाउसिंग एंड पैकिंग टोटल 31,500। फिर आपने कमीशन पे करनी है कंसाइनिंग को, जितनी सेल है आपकी 9,80,000 उसके ऊपर है 10% 98,000 जिसकी जबर है कमीशन। फिर कंसाइनी ने सेल की है एंट्री बनते हैं कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट जिसमें लीजिए सेल्स 700 यूनिट सोल्ड एट 1400 गेट इज 980, और कोई एडवांस आपने पे नहीं किया है तो बस बैलेंस आपका ड्यू हो जाएगा बाय बैलेंस सीधी। तो मेंशन नहीं किया है कि बैलेंस आपको रिसीव हुआ है कि नहीं, तो आप बैलेंस सीधी शो कर सकते हैं। तो जिसमें लीजिए 980 माइनस अवर 98,000 एंड 31,500, तो बैलेंस है 850,500, जिस अमाउंट की ड्यू फ्रॉम कंसाइनमेंट, तो आप पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन है पहले आप खुद ट्राई कीजिए देन यू शुड चेक योर सोल्यूशन, और मेथड हम कैसे फॉलो करें। लेट अस सी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6। So page number is 6.62. So in this case we are given Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi. So consigner is Ajay of Mumbai consigns goods to Vijay of Delhi. Goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost. So goods are transferred at invoice price which is 125% of cost price which is CP. So Vijay is entitled to commission 10% on sale. So Vijay will get to commission. So how much is this commission? This is 10% on sales at invoice price. Sale will be taken at invoice price. And 25% of any excess realized over invoice price. So plus you will get to 25% of excess price which is realized over invoice price. मीन्स यदि आपका सेल प्राइस इनवाइस प्राइस से ज़्यादा है तो उसका 25% कमीशन आपको और मिल जाएगी। द एक्सपेंसिव फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय, तो आपको एक्सपेंसिव किए हैं फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय जिसमें लीजिए 10,000। देन अकाउंट सेल्स रिसीव बाय अजय शोज दैट विजय हैज इफेक्टिव सेल, सो विजय हैज मेड सेल्स for how much amount of rupees 1 lakh, rupees 1 lakh, and it represents 75% of goods. तो मीन्स जो कंसाइनर ने गुड्स भेजी है उसका 75% हमने सेल कर दी है इस प्राइस के ऊपर। तो अभी गुड्स की इनवाइस प्राइस हमें दी नहीं है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में।
तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं 8000, तो इसके लिए उसके सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो दी जा रहे हैं 8000। 10% of consignment goods of the value 12500 were destroyed in fire at a Geli गोडाउन। तो विजय के गोडाउन में आपकी फायर हो गई है, फायर इन गोडाउन, और उसमें आपकी जो 10% है गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर इन गोडाउन। अब इसकी वैल्यू आपको दी है 12500, एंड वैल्यू है ये रुपीज 12500, एंड डीड वर डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी पे 12000। तो इसका आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड एट 12000, एंड विजय रिमिटेड बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय। तो जो भी बैलेंस था वो हमने पे कर दिया है विजय ने, एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड विजय अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अजय। तो ये भी वही है, तो आपको अजय कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनिंग अकाउंट। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए कि व्हाट इज इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, जो आपने भेजी है गुड्स। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, आपको ये किया कि 10% गुड्स जो लॉस्ट हो गई हैं उसकी इनवॉइस प्राइस की है, वैल्यू है 12500, क्योंकि हमने कंसाइनिंग को भेजी है इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इनवॉइस प्राइस मानी जाएगी। तो 10% की इनवॉइस प्राइस है आपकी 12500, तो आपकी 100% की आ जाएगी, तो गुड्स आपने भेजी थी इनवॉइस प्राइस 125,000, और इनवॉइस प्राइस है 125% ऑफ सीपी का। देखिए सीपी 100 है तो इनवॉइस प्राइस है 125, तो इसकी आप सीपी भी कैलकुलेट कर सकते हो, सीपी ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो बाद में आपको जरूरत पड़ेगी लॉगिंग की। तो इफ इनवॉइस प्राइस है 125, सीपी 100, इफ इट इज 125,000 तो इट मीन इट इज 1 लाख। तो अब आपने टोटल जो गुड्स थी आपकी 100%, तो उसका 75% आपने कर दी है सेल, ठीक है, तो 25% रहेगी आपके, और उसमें से 10% आपकी होगी लॉस्ट, तो 85% होगी, 15% रहेगी स्टॉक में। तो मेन आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अब नॉर्मल लॉस। उसमें आपके एक्सपेंसेस आएंगे, कंसाइनर के भी और कंसाइनिंग के भी आएंगे, और कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस की हैं, कोई डायरेक्ट नहीं है, तो सिर्फ कंसाइनर के रह जाती हैं। तो लेट अस कैलकुलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, वैल्यू ऑफ लॉस बाय फायर, इसको आपने वैल्यू करना होता है कॉस्ट के ऊपर, एट कॉस्ट। बचेगा कॉस्ट प्राइस, देखो टोटल कॉस्ट प्राइस है आपकी 1 लाख, तो इसमें आपको चाहिए सिर्फ 10%, जो गुड्स आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है 10,000। चलो सिर्फ कंसाइनर एक्सपेंसिव, कंसाइनर के एक्सपेंसिव है 10,000, तो इसका भी आप ले लीजिए 10%, जो आपकी डिस्ट्रॉय हो गई है, इट मीन्स 1000। आपके लॉस की वैल्यू आ जाएगी 11,000, सर आपको क्लेम मिल रहा है इसमें से 12,000। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो 75% सेल हो गई है, 10% 15% रह गया क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड देखिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फिर इसको हम लेते हैं इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो इट विल बी वैल्यू एट इनवॉइस प्राइस, क्योंकि उसकी लॉगिंग होती है वो हमें बाद में एडजस्ट करनी पड़ती है। और ठीक इनवॉइस प्राइस ऑफ स्टॉक, टोटल देखो इनवॉइस प्राइस है 125,000, तो स्टॉक हमारे पास रह गया है 15%, you take 125,000 into 15%, 18,750,
देन कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस है 10,000 फ्रेट, तो उसका भी आप कर लीजिए 50%। इस क्वेश्चन में ना आपको यूनिट नहीं दिए, सारा परसेंटेज में चल रहा है। टोटल गुड्स हमने भेजी वो 100% है, 75% सेल हो गई, 10% डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 50% बची हमारे स्टॉक में, तो सभी एक्सपेंसेस का हमने कर दिया 50%, 1500। ये आपके स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि 250, 20,002। फिर इसकी जो लोडिंग है वो हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो मेन गोल चीज़ें ये थी। अब आता है सेल का पॉइंट है, इसमें कमीशन, सेल्स के ऊपर आपको कमीशन कैसे पे करनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर था लीजिए कमीशन ऑफ कंसाइनिंग। देखो आपने कमीशन इसमें आपको मेंशन किया था, आपने पे करनी है 10% को हम देंगे कमीशन इनवॉइस प्राइस के बेस पे। तो आप कैलकुलेट कीजिए प्रति सेल एट इनवॉइस प्राइस, टोटल कितनी इनवॉइस प्राइस है आपकी 125, और कितनी सेल हो रही है 75% गुड्स आपकी सेल हो गई है। तो ये आपका सेल वैल्यू आ जाएगी इनवॉइस प्राइस के ऊपर 93,750। पर आपने एक्चुअल सेल की 1,00,000 की, सेल वैल्यू इज टोटल इज रुपीज 1,00,000। तो फिर आप कैलकुलेट कीजिए एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। मीन्स इनवॉइस प्राइस से एक्स्ट्रा आपको कितना सेल प्राइस मिल रहा है, जैसे 1,00,000 सेल प्राइस है आपका, माइनस इनवॉइस प्राइस है 93,750, ये बैलेंस आ जाएगा आपका 6,250। तो अब आपने कमीशन पे करनी है। कमीशन आप कैलकुलेट कीजिए, व्हाट इज कमीशन। तो 10% को आपने देनी है ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस, तो 10% ऑफ सेल एट इनवॉइस प्राइस 93,750 विच इज 9375। और फिर आपको देनी है 25% ऑफ एक्सेस, 25% एक्सेस अमाउंट है आपका 6,250, 6,250 इंटू 25%, तो राउंड ऑफ कर रखे हैं 1,562 बन रहा है। तो टोटल कमीशन बन जाएगी 10,937। अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं बची जबर कंसाइनमेंट अकाउंट। तो लॉस की वैल्यू ये आ गई आपके पास जो हमें चाहिए थी। तो ये बन रही है बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो इस केस में जो कंसाइनर है, कंसाइनर इज आगे, और हम बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये आएंगी आपकी इनवॉइस प्राइस के ऊपर 1,25,000 टोटल इनवॉइस प्राइस। फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेज, बैंक फ्रेट आपने पे किया था 10,000। फिर यहाँ पे कंसाइनी के एक्सपेंसेज टू विजय expenses, they are only selling expenses, account sales, selling expenses, जिसे जो गिवन टू बी एक अकाउंट। फिर आपने कंसाइनी को पे करनी है कमीशन, कंसाइनी की है 10,937 बेनिफिट बाय एबनॉर्मल लॉस which is by fire 11,000 by consignee Vijay, that will be our sale 75% गुड सेल हो गई है एट 1,00,000 रुपीज, एंड देन बाय क्लोजिंग स्टॉक
देखिए कि 20,250। फिर आपको कैंसिल करना है स्टॉक रिजर्व, क्योंकि आपने गुड्स भेजी है इनवाइस प्राइस के ऊपर, तो उसमें जो लोडिंग है वो कैंसिल करेंगे हम, तो उसकी हो जाएगी इसमें रिवर्स एंट्री बाय गुड्स साइन कौन हो कंसाइनमेंट, व्हाट इज लोडिंग 25 होगी। फिर क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग आएगी टू स्टॉक रिजर्व, क्योंकि टोटल लोडिंग है 25 हो गई और स्टॉक कितना बचा आपके पास 15%, तो उस 15% स्टॉक की लोडिंग आ जाएगी 25,000 इंटू 15%, 375। तो बैलेंस इज ओवर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ये है प्रॉफिट। So total is over 111,000 plus 20,250 plus 25,000 156,250. So minus 135,000 minus 18,937 minus 3750। इसमें आपका लॉस आ रहा है तो आप लिख सकते हैं बाय P&L लॉस ऑन कंसाइनमेंट 1437। तो टोटल बन जाएगा ये आपका प्लस 156,250 157 687। Because commission is very high in this case, therefore get a loss। तो नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन, आपके सवाल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ऑन एक्सरसाइज में। ये आपको दिए टेस्ट योर नॉलेज में जो सवाल क्वेश्चन हैं, लेकिन से 2-3 क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। These are given as a test your knowledge। So page number is 6.65। तो लेके से प्रॉब्लम नंबर 1, तो इसमें आपको मेंशन किया है P ऑफ डेली सेंड्स गुड्स। सो P ऑफ डेली सेंड्स out of 1,000 boxes, sends out 1,000 boxes of toothpaste costing 200 each। So cost price is rupees 200 each। तो आपको 1,000 बॉक्सी हमने भेजी है, तो एक बॉक्सी कॉस्ट है 200। ईच बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 12 पैकेट्स, 600 बॉक्सी आर सोल्ड। तो उसमें से आपने सेल कर दिए 600 बॉक्सी सोल्ड। सो एट रुपीज 20 पर पैकेट। आपको ये भी दिया है कि एक बॉक्स में वन बॉक्स है जो हाउ मेनी पैकेट्स, वन बॉक्स है जो 12 पैकेट्स। तो आप सेल प्राइस निकाल सकते हैं पर बॉक्स, व्हाट इज सेलिंग प्राइस पर बॉक्स इफ दे आस्क। तो आपके 20 का सेलिंग प्राइस है और 12 पैकेट्स हैं आपके 240। तो पोस्ट प्राइस है आपकी 200 रुपये, सेल हो रहा है 240 में। बट दे आर आस्किंग अमाउंट ऑफ सेल वैल्यू विल बी, तो आपको बस सेल वैल्यू बतानी है, व्हाट इज सेल वैल्यू। तो ये पर बॉक्स आ गई आपकी 600 बॉक्स ही आपके सेल हो गए हैं इनटू 240। दैट विल बी अवर सेल वैल्यू 600 इंटू 240। मेन पॉइंट ये था कि उन्होंने ना सेल प्राइस दिया आपको पर पैकेट,
ठीक है, बट आपका जो पैकेट्स हैं एक बॉक्स में है 12 पैकेट, और ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं जो सेल हो रही है वो बॉक्सेज की है। तो सेल प्राइस को पैकेट की जगह पहले बॉक्स में कन्वर्ट कर दो आप, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो लेके से क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड है एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट 2000 बॉक्सेज टू वाई। तो एक्स ने भेजे हैं सेंड्स 2000 बॉक्सेज टू वाई। सो वाई इज ऑफ डेली कॉस्टिंग 100 ईच। उसकी कॉस्ट प्राइस आपको दी है कॉस्टिंग रुपीज 100 ईच। कंसाइनर एक्सपेंसेस आर 5000। सो कंसाइनर है इनका जो एक्सपेंसेस 5000 एंड वन टैंक ऑफ बॉक्सी वर लॉस्ट इन कंसाइनिंग गोडाउन। अभी कंसाइनिंग का गोडाउन में जब बुक्स पड़ी हैं तो वन टैंक आपकी जो है 1/10 ये आपकी हो गई है लॉस्ट, विच इज बट इट इज ट्रिकी है नॉर्मल लॉस। तो ये आपका है नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस की हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो 1200 बॉक्सी वर सोल्ड, 1200 बॉक्सी आपके सेल हो गए हैं। 1200 बॉक्सी जो सोल्ड। तो पता वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, तो आपको इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले यूनिट निकालते हैं कितने हैं। 2000 बॉक्सी आपने भेजे, तो गुड्स सेंट 2000 बॉक्सी माइनस लॉस्ट वन टैंक 200 माइनस सोल्ड 1200 आपने कर दिए सेल। तो आपका जो स्टॉक रह गया है गेट इज 600 जो बॉक्सीज। ये बॉक्सीज आपके चल रहे हैं। तो इसकी हमें अब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग स्टॉक। तो लेके से कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच 100 ईच। तो पहले आप लिखिए व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 2000 बॉक्सेज आपने भेजे 100 ईच विच इज 2 लाख। उसमें ऐड हो जाएंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेज। कंसाइनर एक्सपेंसेज देखो आपको मेंशन किए हैं इसमें 5000 की। तो दिस इज 205। ट्रेक ये तो रुपीज में है, इधर आप बॉक्सेज भी लिख सकते हैं। तो ये है आपके 2000 बॉक्सेज। इसमें से लेस कर लीजिए नॉर्मल लॉस, देखिए 1/10 200 का आपका लॉस हो गया है बॉक्सिंग में। तो इट मीन्स अब ये रह गए 1800 जो बॉक्सिंग, उसकी कॉस्ट मानी जाएगी 205। तो नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं लेते हैं हम। तो यूनिट्स हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, तो कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाती है। बस अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो कंसाइनिंग का कोई एक्सपेंस नहीं है। इसमें कितना स्टॉक रह गया 600, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। तो गेटिंग ओवर 1200 what is value of क्लोजिंग स्टॉक, तो आप मेंशन कर सकते हैं। 1800 जो कॉस्ट है टोटल 205 है, बट इज कॉस्ट ऑफ 600। दिस विल बी 1/3 ऑफ 205 divided by 3। So 68 333 is the value of closing stock। Next we have question number 4। It is small question है। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर सेम है। सो एक्स ऑफ कोलकाता सेंट आउट 2000 बॉक्सेस कॉस्टिंग 100 की। ये भी सेम एक्स सेंट्स 2000 बॉक्सेस कॉस्टिंग
रुपीज 100 each. Right, with instruction that sales to be made at cost plus 45%. तो फिर सेल प्राइस इज cost price plus 45%. Cost is 100 and X draws a bill on Y for an amount equal to 60% को सेल वैल्यू. तो X ने एक बिल ड्रॉ किया है Y के ऊपर. X draws a bill on Y equal to 60% of सेल वैल्यू. आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज अमाउंट ऑफ बिल. तो बिल का अमाउंट कितना है इस केस में. तो सिंपल है, पोस्ट प्राइस आपको दी है उसको आप कन्वर्ट कीजिए सेल प्राइस में. 145 हो जाएगी CP प्लस 45. तो सेल वैल्यू है आपकी 2000 इंटू 145. तो उसका 60% अमाउंट का आपने बिल ड्रॉ कर देना है. देखिए अगर सिंपल आंसर. तो 2000 इंटू 145 इंटू 60%, 174,000. राइट, तो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग. अब बाकी हैं जो बड़े क्वेश्चन हैं 4 क्वेश्चन. तो आप नोट डाउन कीजिए एंड फर्स्ट यू शुड डू योर सेल्फ, देन यू कैन चेक द आंसर. थैंक यू.